A very good evening, guys. Am I audible and visible to all of you? Okay, welcome to Bank Pro. Let's get started with today's current affairs quiz from 3rd of April. So, guys, we have many questions today which are very important for all your bank exams. So every day at 6 p.m. I'll be taking a daily current affairs quiz on Bank Pro itself. So guys, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. Very good evening, Priya. And just share the link with your friends so that all of you can benefit with your upcoming bank exams like SBI, PO, SBI clerk, IBPS, PO clerk, RRB, and other regulatory body exams as well. So guys, this is Ruhi, your friend, mentor, educator and guide who teach on Unacademy for bank exams as well as RBI, SEBI, NABARD exams. So guys, you can follow me on Unacademy for all such unique courses which are available on my profile. So this is my upcoming and ongoing batch. Okay, so the batch is already started for IBPS, SBI and RRB. So you can just search me on my Unacademy's profile. The batch has started. Okay, at 4 p.m. there is every day current affairs session followed by the next batch will be for your banking awareness. Okay, so अगला जो बैच रहेगा आपका बैंकिंग अवेयरनेस के लिए रहेगा 14 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है. इसके अलावा करंट अफेयर्स के बैचेस भी चलते रहेंगे एंड इन द नेक्स्ट 3 to 4 months we'll be covering your entire syllabus for SBI, IBPS and RRB in the batch courses as well. So guys, you can go for the subscription of your choice. Okay, there are various categories available, so you can go for the subscription and you can use the code Ruhi Live to get a 10% discount on the subscription. So good evening everyone. So let me start with today's session. So the very first question here is National Payment Corporation of India NPCI has capped the market share of UPI apps at what percent of overall payment volumes? 30%, 34, 40 या फिर 47%. सो गाइस, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने जो UPI एप्स का मार्केट शेयर उसके लिए जो कैप लगाया है दैट इज टोटली 30%. ओके, सो 30% ओवरऑल ऑन दी पेमेंट वॉल्यूम्स. ओके, सो NPCI का फुल फॉर्म यहाँ से इंपॉर्टेंट है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. इन्होंने अपने डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशंस के लिए कुछ नए गाइडलाइंस रिलीज किए हैं जिसमें ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस जो होते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पे लिमिट लगाया गया है 30% का. दिस इज द कैप set by NPCI in a bid to enforce parity in the country's fast growing digital payment industry. So very important. The next question is, which bank has tied up with Tide India, part of Tide UK, UK's leading business banking tech to fintech to provide banking infrastructure for Tide India's platform focused on the SME segment. स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेगमेंट पर फोकस करते हुए इनमें से किस बैंक ने टाइड इंडिया के साथ जो है टाई अप किया है? RBL बैंक, इंडसइंड, कोटक महिंद्रा या फिर IDFC फर्स्ट बैंक? Yes, the answer here is RBL बैंक. Okay, RBL बैंक ने ये टाई अप किया है टाइड इंडिया के साथ. Okay, रत्नाकर बैंक लिमिटेड जिसकी हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, इन्होंने टाइड इंडिया के साथ टाई अप किया है विच इज अ पार्ट ऑफ टाइड यूके, यूके's लीडिंग बिजनेस बैंकिंग फिनटेक. Okay, what is a fintech? Fintech is a company which provide financial services, okay, along with the use of technology
ऐसी कंपनी जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए, ओके, सो दैट इज फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी, फिनटेक। सो बेसिकली आरबीआई का ये आरबीएल का ये टाइप टाइड इंडिया के साथ हुआ है टू प्रोवाइड बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टाइड इंडिया प्लेटफॉर्म फोकसिंग ऑन द स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेगमेंट। Next question is Reserve Bank of India has lowered the base rate by how many basis points to 7.81? This is very important. 7.81%. RBI has lowered the base rate by how many basis point? कितने basis point से RBI ने अपना base rate जो है reduce किया है to 7.81%. Here the correct answer is 15 basis points. Okay, 15 basis points से base rate lower कर दिया गया है. That is 0.15% to 7.81%. Interest rate on senior citizen savings scheme has been fixed at what percent? Senior citizen savings scheme पे interest rate first quarter fiscal 2022 के लिए कितना रखा गया है? So the interest rate on senior citizen savings scheme is 7.4%. ठीक है, याद रखना है, एक इंटरेस्ट रेट आपको पूछा जाता है हर क्वार्टर में, तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स के लिए इट्स करंटली 7.4%. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट ऑन एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट? फर्स्ट क्वार्टर 2021-22 के लिए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पे जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है? 7.1%, 5.4, 6.8 या फिर 4.2%? The answer is 6.8%. Okay, 6.8% on national savings certificate. So guys, this टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ये टेबल आप अच्छे से लर्न कर सकते हो. सो इंटरेस्ट रेट दिए हुए हैं जनवरी 1, 2021 से लेकर मार्च 31, 2021 तक के. सो सेविंग्स अकाउंट पे इट इज 4% कंपाउंडेड एनुअली. देन 1 ईयर टाइम डिपॉजिट पे 5.5% कंपाउंडेड क्वार्टरली. 2 ईयर टाइम डिपॉजिट पे 5.5% क्वार्टरली. 3 ईयर टाइम डिपॉजिट पे अगेन 5.5% कंप्यूटेड क्वार्टरली. 5 ईयर टाइम डिपॉजिट पे 6.7% कंप्यूटेड क्वार्टरली. 5 ईयर रिकरिंग डिपॉजिट्स पे 5.8% क्वार्टरली. एंड 5 ईयर के सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पे इट इज 7.4% विच इज क्वार्टरली एंड पेड. This is very important. Okay, savings is very important. 1 year time deposit is very important and 5 year senior citizen saving scheme का जो interest rate है ये 3 extremely important है and बाकी भी जो है आप लोग याद रख सकते हो, but these 3 are highly important. Then you have 5 year monthly income account के लिए भी 6.6% दिया है. 5 year national saving certificate जो अभी आपका क्वेश्चन का पार्ट रहा था, this is very important, 6.8%. पीपीएफ के लिए 7.1%. किसान विकास पत्र के लिए 6.9% will mature in 124 months which is annually. and सुकन्या समृद्धि के लिए भी 7.6% annually. So these एनएससी, पीपीएफ, केवीपी, सुकन्या समृद्धि एंड जो मैंने आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के लिए बताया और सेविंग्स अकाउंट के लिए जो इंटरेस्ट रेट दिया गया है, इनमें से ये सारे रेट्स जो है हाईली इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, हाउ मच अमाउंट हैज बीन कलेक्टेड एज जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन फॉर मार्च 2021? 2021 के लिए, मार्च 2021 के लिए जीएसटी रेवेन्यू से कलेक्शन कितना रहा है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स. सो मार्च 2021 में इट इज 1,23,902 करोड़. ओके, याद रखो बच्चों, जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन फॉर द मंथ ऑफ मार्च वाज 1,23,902 करोड़, हाईएस्ट एवर कलेक्शन. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? प्रेस्टिजियस 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? के विश्वनाथन, देन यू हैव अमिताभ बच्चन, रजनीकांत या फिर विनोद खन्ना. Very very correctly answered by all of you, Rajnikant. Okay, a legendary actor Rajnikant has been chosen for the 51st Dada Saheb Phalke Award for the year
2019. यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग प्रकाश जावड़ेकर जी द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है और इनको जो अवार्ड दिया जाएगा ये मई में दिया जाएगा. ओके, सो ये अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया जा रहा है. एंड रजनीकांत इज द 12th साउथ इंडियन टू गेट दिस अवार्ड. ओके, अगर डिटेल में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखिएगा ये 12वें साउथ इंडियन अवार्डी रहेंगे दादा साहेब फाल्के अवार्ड की. अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्कूल कॉल्ड न्यूबू न्यवगम येरको अ फॉर्मल इंडिजिनियस लैंग्वेज एंड नॉलेज सिस्टम स्कूल इनॉग्रेटेड. इनमें से इंडिजिनियस लैंग्वेज एंड नॉलेज सिस्टम का स्कूल जिसका नाम न्यूबू न्यवगम येरको है, ये कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है? आसाम में, सिक्किम में, अरुणाचल में या नागालैंड में? सो यहाँ पर करेक्टली आंसर किया है चेतन कार्तिक यामिनी ने, अरुणाचल प्रदेश में. याद रखना है, नाम भी आपसे पूछा जा सकता है. अरुणाचल प्रदेश का है न्यूग्यू न्यवगम येरको. ठीक है, तो बेसिकली अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खंडू जी द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया है. ये अरुणाचल प्रदेश का इंडिजीनियस लैंग्वेज एंड नॉलेज सिस्टम स्कूल है. ईस्ट केमेंग डिस्ट्रिक्ट. ओके, डिस्ट्रिक्ट का नाम जैसे आरबीआई ने पूछा था, डिस्ट्रिक्ट भी पूछे जा रहे हैं. सो ईस्ट केमेंग डिस्ट्रिक्ट में इसका इनॉग्रेशन किया गया है और ये पहला स्कूल है न्यूबू न्यवगम येरको जो रांग विलेज नियर सेपा में इनॉग्रेट किया गया है. अगला सवाल है, सुभाष कुमार हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द सीएमडी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच कंपनी. इनमें से किस कंपनी के सीएमडी बने हैं सुभाष कुमार? एनटीपीसी के, ओएनजीसी के, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड या फिर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के? वेरी वेरी करेक्ट, द आंसर इज ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं सुभाष कुमार. ठीक है, इन्होंने एडिशनल चार्ज संभाला है. 1 अप्रैल 2021 से इनका टेन्योर इफेक्टिव रहा है एंड ही इज सर्विंग एज द डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस एट ओएनजीसी एंड ऑन 1st of April he has assumed the charge of chairman and managing director. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस बैंक ने एन स्टोर के साथ पार्टनरशिप की है टू डिजिटाइज ऑफलाइन रिटेलर्स एंड स्मॉल बिजनेसेस इन द कंट्री? स्मॉल बिजनेस और ऑफलाइन रिटेलर्स को डिजिटाइज करने के लिए इनमें से किस बैंक ने एन स्टोर के साथ पार्टनरशिप की है? इक्विटास, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन या फिर एयू? द आंसर हियर इज उज्जीवन. ओके, तो याद रखिए गाइस, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की पार्टनरशिप हुई है एन स्टोर के साथ. एन स्टोर के साथ पार्टनरशिप करते हुए ही ये ऑफलाइन रिटेलर्स एंड स्मॉल बिजनेसेस को क्या कर रहे हैं? डिजिटाइज कर रहे हैं. इस पार्टनरशिप के तहत लेंडर विल ऑफर अ मोबाइल एप्लीकेशन एन लिंक्स. ओके, एन लिंक्स ये एप्लीकेशन ऑफर किया जाएगा करंट अकाउंट होल्डर्स को जो लोकल रिटेल बिजनेस संभालते हैं. एंड इस तरीके से ये डिजिटाइज करने का इनिशिएटिव उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एन स्टोर के साथ लिया है. अगला सवाल है, इनमें से किस कंट्री ने ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में टॉप किया है? नॉर्वे, आइसलैंड, फिनलैंड या फिर स्वीडन ने? कल आपका 11 से आई थिंक 2 घंटे का क्लास रहेगा बिकॉज आज भी बहुत सारे क्वेश्चंस है. ओके, कल 11 से 1 बजे आपका 2 घंटे का मैराथन भी लूंगी मैं. ठीक है, चलो, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में आइसलैंड ने टॉप किया है. यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, मोस्ट जेंडर इक्वल कंट्री आइसलैंड रहा है. ठीक है, और वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्री रही है अफगानिस्तान. इंडिया का रैंक क्या रहा है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल जेंडर इंडेक्स? कैन एनीवन टेल मी द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट? 140th. वेरी करेक्ट. The next question is, how much amount has been released by the Finance Ministry to states under the scheme Special Assistance to States for Capital Expenditure? Capital Expenditure के लिए Special Assistance के फॉर्म में कितना अमाउंट फिनेंस मिनिस्ट्री द्वारा स्टेट्स को दिया गया है?
कल 11 से 1 बजे तक के मैराथन क्लास होगा अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में, ठीक है। पूरा वीकली कंपाइलेशन लूंगी गाइज एंड दैट विल बी अ ग्रेट कंपाइलेशन। दिस टाइम आई एम टेकिंग द क्वेश्चन फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट लेवल सो दैट यू डोंट मिस एनीथिंग, ओके। चलो यहाँ पर है 11,830 करोड़, 11,830 करोड़ फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा स्पेशल असिस्टेंस टू द स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो याद रखना आपको अमाउंट, द स्कीम वाज अनाउंस्ड ऑन 12 अक्टूबर लास्ट ईयर एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत पैकेज। इस स्कीम के तहत ही ये असिस्टेंस स्टेट्स को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है। अगला सवाल है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे एक एनुअल इवेंट है, किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल, 31 मार्च, 1 अप्रैल या फिर 30 मार्च। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे इनमें से किस दिन मनाया जाता है? काइंडली रिफ्रेश गाइस, इट्स बफरिंग। द करेक्ट आंसर इज 2 अप्रैल को हर साल जो है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है इंटरनेशनली, ओके। सो वर्ल्ड है, इंटरनेशनली ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है जिसके तहत जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है उसके रिगार्डिंग लोगों के बीच में जागरूकता अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए थ्रू आउट द वर्ल्ड दिस डे इज ऑब्जर्व्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द थीम inclusion in the workplace, challenges and opportunities in a post pandemic world. The theme is very very important. The next question, Diadar Siraka who passed away was a former president of which country? ऑब्ituary से सवाल है यहाँ पर। दियादर रथ सिरिका जिनका हाल ही में निधन हुआ है किस कंट्री से बिलोंग करती है? मडगास्कर, नामीबिया, मोजाम्बिक या फिर जाम्बिया? द करेक्ट आंसर हियर इज मडगास्कर, ठीक है। सो मडगास्कर के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं दियादर रथसिरिका, एक नेवल ऑफिसर एंड इंस्टिगेटर ऑफ सोशलिस्ट रेवोल्यूशन ऑफ इंडियन ओशन आइलैंड भी रह चुके हैं जिनका हाल ही में जो है निधन हुआ है। इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? 2 अप्रैल, 31 मार्च, 1 अप्रैल या फिर 30 मार्च? इनमें से किस दिन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे मनाया जाता है? वेरी करेक्ट, द आंसर इज 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को हर साल इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे मनाया जाता है। अब बेसिकली एक फैक्ट यहाँ से याद रखना है आपको, इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल ये एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो इस दिन को हर साल इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे के तौर पे ऑर्गेनाइज करती है। याद रखना है इस एनपीओ दैट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का नाम IBBY है। बेसिकली ये दिन मनाया जाता है टू इंस्पायर अ लव ऑफ रीडिंग एंड कॉल अटेंशन टू द चिल्ड्रंस बुक एंड द नेम ऑफ द name of the day is International Children's Book Day. Which country is the sponsor for International Children's Book Day? US, New Zealand, Australia या फिर डेनमार्क? इनमें से किस कंट्री द्वारा, कौन सी कंट्री इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे की स्पॉन्सर कंट्री है? The answer is US. Okay, so IBBY जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये US का है, यूनाइटेड स्टेट्स का है जो इसके लिए स्पॉन्सर करता है। थीम क्या रहा है इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे 2021 का? थीम क्या रहा है? द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स, हंगर फॉर वर्ड्स, सेलिब्रेटिंग लिटरेचर एंड रीडिंग, लेट अस ग्रो विद द बुक। द थीम इज द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स, ओके, द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स। Who has been appointed as Director General of ESIC, Employee State Insurance Corporation के Director General का नाम क्या है? अपर शक्ति खन्ना, सुमित अवस्थी, श्रीनिवासन भल्ला या फिर मुकमित भाटिया? Director General of Employee State Insurance Corporation is मुकमित भाटिया। नो, इसका आंसर तो डी है, ठीक है। मुकमित भाटिया को डायरेक्टर जनरल बनाया गया है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का।
ओके, तो भाटिया 1990 से आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं झारखंड कैडर से। याद रखना है गाइस, डिटेल में क्वेश्चन बन सकता है। 1990 झारखंड कैडर से आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific has projected India's economic growth rate at what percent? 2021-22 के लिए यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर इंडिया एंड पैसिफिक ने जो ग्रोथ फोरकास्ट किया है इंडिया के लिए वो है 7% का। याद रखना है गाइस, 7% 2021-22 के लिए है ओवर अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 7.7% विच वॉज फॉर द प्रीवियस फिस्कल। ठीक है, सो कोविड-19 की वजह से इस साल का जो ग्रोथ फोरकास्ट है 7% का है, 7.7% का यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन देखने मिला है। Who has been appointed as the chairperson of Public Enterprise Selection Board? PESB के नए चेयरपर्सन का नाम नैना लाल किदवाई, मल्लिका श्रीनिवासन, विनीता बाली या फिर लक्ष्मी वेनु। PESB के चेयरपर्सन का नाम है मल्लिका श्रीनिवासन। याद रखें, मल्लिका श्रीनिवासन मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन बन चुकी है बेसिकली ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड की ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुकी है, जिनको अभी अपॉइंट किया गया है एज चेयरमैन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड। सो काफी पहली बार एक प्राइवेट सेक्टर स्पेशलिस्ट को PESB का हेड बनाया गया है और इनका नाम आपको याद रखना है मल्लिका श्रीनिवासन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक एंड गूगल are to build new cables under the sea called Dash and Bifrost to connect the US to Singapore and Dash. Loki Philippines, Eco Indonesia, Hoor Malaysia या फिर Boost Hawaii। ठीक है, श्योर कार्तिक, ओके, स्पेशल क्लास में भी करा दूंगी। Facebook and Google are to build new cables under the sea called as Eco, okay, called Eco and Bifrost to connect US to Singapore and Indonesia। याद रखना है गाइस, Facebook and Google नए केबल्स डेवलप कर रहे हैं अंडर द सी जिनका नाम Bifrost और Eco है, जो US को सिंगापुर और इंडोनेशिया से कनेक्ट कर रहा है। ओके, तो दोनों का नाम यहाँ पे हाईली इंपॉर्टेंट है, किस कंट्रीज को किससे कनेक्ट कर रहा है, US टू सिंगापुर एंड इंडोनेशिया। अगला सवाल है, to the 2000 students of which country will the government of India provide scholarship under its new Mukti Jodha scholarship scheme? श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव्स। 2000 स्टूडेंट्स, इनमें से किस कंट्री के 2000 स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे रही है मुक्ति जोधा स्कॉलरशिप स्कीम के तहत? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। ओके, सो गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है कि कुल मिला के 2000 बच्चों को, ओके, 2000 descendants of liberation war fighters of Bangladesh under its new scheme, that is Mukti Jodha scholarship scheme, will be given a scholarship of 20,000 taka. Taka is the currency of Bangladesh. Okay, so this scholarship will be given for higher secondary and 50,000 taka to be given to the undergraduate category students. तो याद रखें, ठीक है, हायर सेकेंडरी के लिए 20,000 का स्कॉलरशिप दिया जा रहा है और 50,000 का अंडरग्रेजुएट कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए। पेटीएम मनी हैज सेट अप अ न्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी वेयर, इन पुणे, देहरादून, लखनऊ या फिर नोएडा में। पेटीएम मनी ने नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी बनाया है पुणे में। ठीक है, सो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है पेटीएम मनी, जिन्होंने नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी पुणे महाराष्ट्र में बनाया है, जिसके तहत प्रोडक्ट इनोवेशन किया जा रहा है, स्पेशली इन द एरिया ऑफ इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स एंड डिजिटल गोल्ड। Okay, so to create some productive innovations in the field of mutual funds, equity, share market and digital gold में पेटीएम मनी का ये इनिशिएटिव रहा है कि वो एक R&D फैसिलिटी पुणे महाराष्ट्र में सेटअप कर रहे हैं। अगला सवाल है, who took the charge of the chief of staff headquarters western command? माजिंदर सिंह, भगवंत मिश्रा, ताजिंदर पाल सिंह, हरमित मन।
चीफ ऑफ स्टाफ हेडक्वार्टर्स वेस्टर्न कमांड का चार्ज लिया है माजिंदर सिंह ने, याद रखें माजिंदर सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, who took the charge of the chief of staff headquarters western command। कल एमसीक्यू जो कराऊंगी मैं 1 तारीख से लेके कल 4 अप्रैल तक के, ओके 1 to 4 अप्रैल की स्पेशल क्लास में मैराथन होगी। सो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के मुताबिक वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्री, अभी हमने देखा था बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री आइसलैंड था, तो उसी में मैंने आपको बताया वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्री कौन सी रही है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की, तो वेरी करेक्ट इट इज अफगानिस्तान। ओके, अफगानिस्तान एज द वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्री अमंग द 156 कंट्रीज इन द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। सेम रिपोर्ट के मुताबिक विच ऑफ द कंट्रीज द बेस्ट परफॉर्मर इन साउथ एशिया, साउथ एशिया की बेस्ट परफॉर्मर अफगानिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान। द आंसर हियर इज बांग्लादेश। ओके, साउथ एशिया में बांग्लादेश ने यहाँ पर टॉप किया है इन द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। हाउ मच अमाउंट हैज बीन रिलीज्ड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री एज एडिशनल डेवोल्यूशन टू स्टेट्स इन द फाइनेंशियल ईयर 2021? एडिशनल असिस्टेंस दिया जा रहा है। ओके, स्पेशल असिस्टेंस स्कीम के तहत हमने देखा था कितना अमाउंट है, और यहाँ पर एडिशनल डेवोल्यूशन टू स्टेट्स एज रिलीज्ड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री इज हाउ मच? It is 45,000 करोड़। ओके, टोटली 45,000 करोड़ फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा 2020-21 के लिए एडिशनल डेवोल्यूशन 43,000 करोड़ का है, which showed an increase of 8.2% over the revised estimates। 2020-21 के रिवाइज्ड एस्टिमेट्स के मुताबिक 8.2% का इंक्रीज यहाँ पर देखने मिला है। इनमें से किस कंपनी ने गूगल और अदर कंपनीज के साथ पार्टनरशिप की है टू प्लान न्यू अंडरसी केबल्स टू कनेक्ट सिंगापुर, इंडोनेशिया, नॉर्थ अमेरिका, देयरबाय बूस्टिंग इंटरनेट कनेक्शन कैपेसिटी बिटवीन द रीजन्स? वेरियस रीजन्स में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए यहाँ पर जो पार्टनरशिप की गई है गूगल के साथ, किस कंपनी ने की है? सो योर करेक्ट आंसर इज फेसबुक। ओके, फेसबुक और गूगल की पार्टनरशिप हुई है। सो केबल्स, न्यू केबल्स सेटअप किए जा रहे हैं टू कनेक्ट सिंगापुर, इंडोनेशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, एंड ऑल्सो टू बूस्ट द इंटरनेट कनेक्शन कैपेसिटी इन द रीजन्स। तो नाम हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी देखा था, यहाँ पर क्वेश्चन आपको कंपनी के बारे में पूछ रहा था, पिछले क्वेश्चन में आपको कंट्री पूछा था। Digital transactions through UPI in the country recorded transaction value of how much amount? कितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन वैल्यू रिकॉर्ड किया गया है डिजिटल ट्रांजैक्शंस थ्रू यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के तहत मार्च 2021 में जो टोटल वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो है 5,04,000 करोड़ के, वेरी बिग अमाउंट। 5,04,000 करोड़ टोटल ट्रांजैक्शंस वर डन। नेक्स्ट, मार्च 2021 में किस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी ने फ्री ट्रैवल फैसिलिटी महिलाओं के लिए अनाउंस की है इन गवर्नमेंट बसेस रनिंग बिटवीन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी? पंजाब, दिल्ली, पुदुचेरी या फिर तमिलनाडु? Free travel facility for women in the government buses running between the state or union territory is announced by Punjab. Okay, so it was not as expected. दिल्ली नहीं था। पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये इनिशिएटिव लिया है। ओके, वर्चुअली इन्होंने फ्री ट्रैवल फैसिलिटी को लॉन्च किया है फॉर वुमेन इन गवर्नमेंट बसेस which will run within the state of Punjab. How much amount has been approved by the union government for upgradation of Kargil Zanskar Road? 810 करोड़, 650 करोड़, 920 करोड़ या फिर 780 करोड़? इनमें से कितना अमाउंट जो है अप्रूव किया गया है कारगिल जंस्कार रोड के अपग्रेडेशन के लिए? सो इट इज 780 करोड़। ओके, 780 करोड़। इनमें से कौन सा स्टेट पहला बन चुका है जिसने एक इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की है जहां पर हर फैमिली को हेल्थ इंश्योरेंस दिया जा रहा है 5 लाख का हर साल? ओके, हर साल 5 लाख का इंश्योरेंस देने वाला कौन सा स्टेट है यहाँ पर?
इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च्ड बाय द स्टेट ऑफ राजस्थान। ओके, याद रखिए गाइस, राजस्थान ने एक ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, जिसके तहत हर फैमिली को मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस हर साल 5 लाख का दिया जा रहा है, where they can claim their medical expenses up to ₹5 लाख। सो पहला जो स्टेट ऐसा बना है वो है राजस्थान। याद रखना है आपको इंश्योरेंस कितने अमाउंट का है, कौन से स्टेट ने इसे लॉन्च किया है, और ये स्कीम का नाम चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। अगला सवाल है, न्यू स्पीशीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स बिलोंगिंग टू द जीनस आर्गेरिया recently discovered as a South Maharashtra's Kolhapur district in the South Maharashtra's Kolhapur district has been named after whom? संजय राउत, उद्धव ठाकरे, अनिल देशमुख या फिर शरद पवार। इनमें से महाराष्ट्र के कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में एक नया स्पीशीज फ्लावरिंग प्लांट का पाया गया है अर्गेरिया, जिसको किसके नाम पे यहाँ पर नेम किया गया है? Argeria has been named after Sharad Pawar. Okay, very important. The name of the species important. Argeria named after Sharad Pawar, and this is found in which district? आपसे पूछ सकते हैं, तो महाराष्ट्र के कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में ये पाया गया है। Okay, so named after the chief of NCP, that is Mr. Sharad Pawar. As per the ratings agency CRISIL के मुताबिक बैंकिंग सिस्टम क्रेडिट will grow at what percent in the fiscal 2022? 2022 के लिए क्रेडिट कितना ग्रो करेगा क्रिसिल के मुताबिक? 10%, 9%, 11 या फिर 8%? The credit will grow up to 10%. ओके, 2021-22 के लिए 10% का ग्रोथ देखने मिलेगा। एंड द इकोनॉमिक रिकवरी इन पॉलिसी इंटरवेंशंस एज अनाउंस्ड बाय द रेटिंग एजेंसी क्रिसिल। Which state government approved innovation fund for development work in districts in which each district will be allocated 1 crore per year? हर डिस्ट्रिक्ट को 1 करोड़ पर ईयर दिए जा रहे हैं। ऐसा इनोवेशन फंड किस गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है? कौन से स्टेट में इनोवेशन फंड को अप्रूवल दिया गया है? In which each district will be allocated ₹1 crore per year. The answer is Rajasthan again. Okay, so Rajasthan का ये fund है. Okay, so basically under this each district will be provided 1 crore, and this is related to the public utility asset creation as per the local needs from the Chief Minister's Innovation Fund. ठीक है, चीफ मिनिस्टर इनोवेशन फंड के तहत स्टेट फंडेड स्कीम के लिए यहाँ पर 1 करोड़ पर ईयर हर डिस्ट्रिक्ट को राजस्थान में दिया जा रहा है। When was India's first passenger train filed between Mumbai and Thane, steam engine of which would be preserved and be installed at the Thane railway station premises? 1827, 1853, 1876, 1809? द करेक्ट आंसर इज 1853। इंडिया का पहला पैसेंजर ट्रेन जो है स्टीम इंजन ऑफ फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन बिटवीन मुंबई एंड ठाणे 1853 विल बी इंस्टॉल्ड एट ठाणे रेलवे स्टेशन। ओके, ठाणे रेलवे स्टेशन के प्रीमाइसेस पे ये इंस्टॉल किया जा रहा है। स्टीम इंजन का पहला पैसेंजर ट्रेन है जो 400 पैसेंजर्स को कैरी करेगा, एंड द जर्नी विल टेक 1 hour and 15 minutes। ओके, याद रखना। अगला सवाल है, डिफेंस मटेरियल्स एंड स्टोर्स रिसर्च डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट सिचुएटेड where has developed a lightweight bulletproof jacket. Lightweight bulletproof jacket defense materials and store research and development establishment ये कहाँ पर सिचुएटेड है? पुणे में, हैदराबाद में, सूरत में या फिर कानपुर में? The answer is कानपुर। Okay, so कानपुर में DMSRDE कानपुर DRDO लैबोरेटरी ने लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट डेवलप किया है, जिसका टोटल वेट आपको याद रखना है 9 किलो का है। ओके, बेसिकली मीटिंग द क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडियन आर्मी, दिस बुलेट प्रूफ जैकेट हैज बीन डेवलप्ड बाय कानपुर DRDO लैबोरेटरी।
इनमें से किस सिटी ने 122nd पोजीशन हासिल की है ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ एनुअल अप्रिसिएशन इन हाउसिंग प्राइसेस? हाउसिंग प्राइसेस में अक्टूबर से लेके दिसंबर 2020 तक के अप्रिसिएशन इंक्रीज देखने मिला है as rates for residential properties in the city rose marginally according to the Knight Frank. अब नाइट फ्रैंक का रिपोर्ट के मुताबिक जो भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज में राइज देखा गया था, इट वाज ऑफ अ मार्जिनल लेवल, बट हियर व्हिच सिटी स्टूड 122nd पोजीशन? इट इज हैदराबाद. ओके, द करेक्ट आंसर इज नॉट बैंगलोर हियर, इट इज हैदराबाद. याद रखना है हैदराबाद का 122वां पोजीशन रहा है. ग्लोबल लेवल पे अगर बात की जाए, यहाँ पे सिर्फ इंडिया में से हैदराबाद 122nd पोजीशन पे रहा है. ग्लोबली अंकारा है टर्की की एक सिटी जिसने पहला पोजीशन हासिल किया है एंड एनुअल प्राइस अप्रिसिएशन ऑफ 30%. लगभग 30% से ज्यादा जो है हाउसिंग प्राइसेस में हाइक देखने मिला था. जिसके बाद सेकेंड पोजीशन पे है इजमीर इन टर्की अगेन एंड देन यू हैव इस्तांबुल. ऑकलैंड न्यूजीलैंड का चौथी प्लेस पे रहा है. सेंट पीटर्सबर्ग 5वीं प्लेस पे रहा है. In which of the following countries will the Indian Army participate in multinational military exercise, namely Shantir Operation 2021? शांतिर ऑपरेशन 2021 मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज में कौन सी कंट्रीज इंडियन आर्मी के साथ पार्टिसिपेट कर रही है? वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे. बांग्लादेश. ठीक है, सो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि ये 9 दिन का एक्सरसाइज है जो कमेमोरेट किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत हो रही है बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन बागबंधु शेख मुजीबुर रहमान के बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करते हुए. इंडियन आर्मी इस मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रही है जिसका नाम है शांतिर ऑपरेशन 2021. What's the theme of this exercise? Same exercise Bangladesh with Indian Army. इसका theme क्या है? Peace and rights, robust peace building operation, control the peace, secure humanity. What is the theme? The theme is robust peacekeeping operations. South Central Railway Commission electrification of how much kilometers of track? इन 2021 में साउथ सेंट्रल रेलवेज ने कितने किलोमीटर ट्रैक को इलेक्ट्रीफाई किया है? इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ हाउ मेनी किलोमीटर्स ऑफ ट्रैक? इट इज टोटली 750 किलोमीटर्स. तो ये मिशन इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इंडियन रेलवेज के तहत मेजर बूस्ट देखा गया है साउथ सेंट्रल रेलवेज में. लगभग 750 ट्रैक किलोमीटर्स रेल नेटवर्क के इलेक्ट्रीफाई किए जा रहे हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020-21. हेडक्वार्टर बताना है आपको. एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस सिचुएटेड गुड़गांव, न्यू दिल्ली, मुंबई, पुणे. द स्टैटिक क्वेश्चन रिलेटेड टू योर करंट अफेयर्स. ESIC की हेडक्वार्टर्स जो है न्यू दिल्ली में है. ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट अगेन न्यूज में रहा है. इसकी हेडक्वार्टर्स जो है चेन्नई में है. ओके, चेन्नई में ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट की हेडक्वार्टर्स. सो ये रहे गाइज आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द करंट अफेयर्स. आज कुछ ज्यादा क्वेश्चंस थे. आई होप आप सब इनको रिवाइज कर लो गाइज. ईच एंड एवरी क्वेश्चन विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन इज कवर्ड एज अ पार्ट ऑफ दिस सेशन. And tomorrow on Sunday I'll be taking a grand marathon session from 11 to 1 which will cover your first week of April. Okay, first week of April 11 बजे आपका सेशन रहेगा स्पेशल क्लास में. ठीक है, स्पेशल क्लास में सेशन होगा. आपको लिंक टेलीग्राम पे मिल जाएगा. ठीक है, तो ज्वाइन कीजिए गाइस. इसके अलावा कोई भी डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो. चलिए मिलते हैं अगले सेशन में. टिल देन थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, लेट्स क्रैक इट.